آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 44 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دکھایا جائے گا ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ناظرین، اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں کہ ارطغرل عبد الرحمن کو دیکھنے کے لیے طبیب عارف کے خیمے میں جاتا ہے۔ ارطغرل جب عبد الرحمن کی حالت دیکھتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ طبیب عارف ارطغرل سے کہتے ہیں کہ حضور، ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، انشاءاللہ عبد الرحمن جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ چاہے یہ پہاڑ خون کے دریا بن جائیں، مگر نویان نے جو کچھ کیا ہے اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ اس کے بعد ارطغرل طبیب عارف سے کہتا ہے کہ میرا بھائی سمرتقین سفید داڑھی والوں کو جانتا ہے اور وہ ترکوں کو اوکتائی خان کی فوج سے نکالنا چاہتا ہے اور اس کام کے لیے اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس پر طبیب عارف ارطغرل سے پوچھتے ہیں سمرتقین صاحب یہ کیسے کریں گے؟ اس کے جواب میں ارطغرل طبیب عارف سے کہتا ہے کہ اوغوث خان کی مہر کے ذریعے۔ اوغوث خان کی مہر کا نام سن کر طبیب عارف حیران ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کیا وہ مہر سمرتقین کے پاس ہے؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ جی، وہ مہر میرے بھائی سمرتقین کے پاس ہے۔ اس مہر کی مدد سے اوکتائی خان کی فوج میں شامل ہمارے بھائیوں کو وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کون ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اگر سمرتقین اوکتائی خان کی فوج سے ترکوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم اناطولیہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اوکتائی خان کی فوج کو کمزور کر دیں گے۔ اس طرح ہم خون بہائے بغیر ریاست کو بچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر طبیب عارف خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور، مجھے جو کرنا ہوگا میں کروں گا۔ اس کے بعد ارطغرل طبیب عارف سے کہتا ہے کہ میں کل صبح سوغوت جاؤں گا۔ ناظرین، سوغوت وہی جگہ ہے جہاں پہ ارطغرل اپنے بھائی گندگدو سے اختلافات کے بعد اپنے قبیلے کے کچھ حصے کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہاں پر ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ آپ بزنطین جا رہے ہیں، یہ آپ کی اور آپ کے قبیلے کی قسمت بدل دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ افراسیاب اپنے خیمے میں موجود ہے۔ اسی دوران اس کا ایک آدمی آتا ہے۔ افراسیاب اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کاروان تیار ہے؟ اس کے جواب میں وہ شخص افراسیاب سے کہتا ہے کہ جی، سب کچھ تیار ہے، شام ہونے تک آخری قالینیں بھی لاد دی جائیں گی۔ اس پر افراسیاب اس سے کہتا ہے کہ آخری کاروان کل صبح کے لیے چھوڑ دو، ہم کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ گندگدو قید والے خیمے میں حمزہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے حمزہ، میں نے تمہیں اپنا سپاہی بنایا، میں نے تمہیں اپنی زندگی سونپی، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ گندگدو حمزہ سے کہتا ہے کل صبح میں سب لوگوں کے سامنے تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے جواب میں حمزہ کہتا ہے بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میری آپ سے ایک آخری درخواست ہے، کم سے کم میری موت کو کرامت بننے دیں۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ جب کوئی کتا مرنے لگتا ہے تو وہ بہت زیادہ بھونکتا ہے۔ اس پر حمزہ کہتا ہے بھائی میری بات سن لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سن کر گندگدو حمزہ کے منہ پر مارتا ہے جس سے حمزہ نیچے گر جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ عالیہ اپنی بھتیجی گونچا گل کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود ہے۔ عالیہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا حائمہ خاتون نے تمہیں کھانے پر دعوت دی ہے؟ اس پر گونچا گل کہتی ہے کہ ہاں، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، وہ اپنے تمام بیٹوں، بیٹیوں اور بہوؤں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا چاہتی ہیں۔ اس پر عالیہ گونچا گل سے کہتی ہے کہ گونچا گل، مہر حاصل کرنے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس پر گونچا گل کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں وہ مہر حاصل کر لوں گی۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں اور ان کے ساتھ ارطغرل، تیمور اور باقی گھر والے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی دوران گندگدو وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میں ذرا تاخیر سے یہاں پہنچا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے بعد گندگدو دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے اور حائمہ خاتون گندگدو کے کان میں سرگوشی سے پوچھتی ہیں کہ کیا سلجان نہیں آئی؟ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ نہیں امی جان۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ گندگدو، تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے مت بھولنا، آج تم سلجان کے خیمے میں ضرور جانا۔ ناظرین، اسی دوران سمرتقین اپنے خیمے سے باہر آتا ہے۔ جب وہ لوگ سمرتقین کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارطغرل اور حائمہ خاتون سمرتقین کو پکڑ کر دسترخوان پر بٹھاتے ہیں اور پھر ارطغرل چمچ اٹھا کر سمرتقین کو دیتا ہے۔ گندگدو سمرتقین سے کہتا ہے کہ تم جس دن سے قیدی بنے ہو یہ چمچ دسترخوان پر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پھر ارطغرل سمرتقین سے کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم نے امید چھوڑ دی تھی، ہم یہ سمجھتے تھے آپ شہید ہو گئے ہیں، لیکن امی جان نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ گلبانو اپنی گھوڑی کے پاس کھڑی ہے۔ اسی دوران وہاں دوحان آتا ہے۔ گلبانو دوحان سے کہتی ہے کہ میری گھوڑی سردی میں تھی اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس پر دوحان کہتا ہے کہ آپ کی سوچ اچھی ہے۔ پھر گلبانو کہتی ہے کہ یہ گھوڑی مجھے سردار خورشید اور عالیہ نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھوڑی تمہاری طرح مضبوط ہے۔ اس پر دوحان گلبانو سے کہتا ہے کہ
तुम सरदार खुशनुद और आलिया की बहुत इज्जत करती हो, क्या ऐसा ही है? इस पर गुलबानो कहती है कि हाँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, खास करके सरदार खुशनुद की। सरदार खुशनुद ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। इस पर दोहान कहता है कि फिर ये बात वाज़ेह है कि तुम सरदार खुशनुद और उनके कबीले के लिए सब कुछ करोगी। ये सुनकर गुलबानो दोहान से कहती है, सिपाही दोहान, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें यहाँ से जान खातून ने भेजा है? ये कहकर गुलबानो वहाँ से जाने लगी होती है, लेकिन दोहान उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर गुलबानो बहुत फुर्ती से अपना खंजर निकाल कर दोहान की गर्दन पर रख लेती है और दोहान से कहती है, कोई भी मुझे मेरे सरदार और उनकी बीवी से धोखा करने का नहीं कह सकता। अगर आइंदा तुम मेरे सामने आए तो मैं अपने सरदार को सब कुछ जाकर बता दूंगी। इस पर दोहान कहता है, गुलबानो, अगर कबीले में वाकई ही कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए। इस पर गुलबानो कहती है कि अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। इसी दौरान दोहान फुर्ती से गुलबानो का खंजर अपनी गर्दन से हटा लेता है और उसकी गिरफ्त से आजाद हो जाता है और कहता है, गुलबानो, हलीमा सुल्तान ने भी अपना सलाम भेजा है। हलीमा सुल्तान भी ये चाहती है कि तुम सज्जान खातून का हार आलिया के खेमे में तलाश करो। अगर तुम्हें वो हार मिल जाता है उसके बाद कबीले के लिए जो कुछ भी जरूरी हुआ तुम्हें वो करना होगा। फिर दोहान गुलबानो से कहता है कि गुलबानो, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, पैगाम लाने वाले से बदगुमान ना हो। इसके बाद दोहान गुलबानो का खंजर उसे देता है और वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रही है। तैमूर सुमुर्तकिन से कहता है कि मैंने तो सुना था मंगोल कभी किसी को कैदी नहीं रखते, फिर उन्होंने आपको इतने साल कैद क्यों रखा? इस पर सुमुर्तकिन तैमूर से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं घोड़ों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, उन्होंने मुझे अपने घोड़ों की देखभाल के लिए रखा था। ये सुनकर तैमूर कहता है, क्या आपने इतने सालों तक सिर्फ उनके घोड़ों की देखभाल की है? इस पर सुमुर्तकिन कहता है कि बात सिर्फ उनके घोड़ों की देखभाल की नहीं थी, अगर घोड़ों को कुछ भी हो जाता तो वो मुझे सजा देते थे। फिर अर्तगत सुमुर्तकिन से कहता है कि भाई, अल्लाह का शुक्र है, अब आप पर वो मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं और अब आप वापस अपने घर वालों के पास आ गए हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप इस किस्म में देखें कि तबीब आरिफ अब्दुर्रहमान का इलाज कर रहे हैं और वहाँ दिली दमीर, तुर्गत और बामसी भी मौजूद हैं। इसी दौरान वहाँ अर्तगल आता है और तबीब आरिफ अर्तगल से कहते हैं कि अब्दुर्रहमान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर बामसी कहता है कि अब्दुर्रहमान ये जानने के बावजूद कि नोयान उसके साथ क्या करेगा फिर भी नोयान के पास चला गया। तुर्गत कहता है कि अब्दुर्रहमान ने हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह सुनकर दिली दमीर कहते हैं कि ऐसा ना कहो, अब्दुर्रहमान अपने कदमों पर दोबारा खड़ा होगा, ना ही इसको और ना ही हमें हिम्मत हारने का हक हासिल है। इसके बाद दिली दमीर ताहिर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अर्तगल तुर्गत और बामसी से कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम फजर के वक्त निकल जाएंगे। ये सुनकर तुर्गत कहता है, भाई हम कहाँ जा रहे हैं? अर्तगल तुर्गत से कहता है कि तुर्गत, हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमारी तकदीर लिखी गई है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि ताजिर अफरसियाब सज्जान खातून के खेमे के पास जाता है। अफरसियाब सज्जान खातून को खेमे के बाहर से आवाज देकर कहता है कि सज्जान खातून, अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने आपसे कुछ बात करनी है। सज्जान खातून अफरसियाब की बात सुनकर खेमे से बाहर आती हैं और उससे कहती हैं, सौदागर, रात के वक्त क्या मसला है? इस पर अफरसियाब कहता है कि हमने आखिरी कालीनें कारवां में लाद दी हैं, इनमें कुछ नुक्स दिखाई दे रहा है। फिर अफरसियाब कहता है, चले मैं आलिया खातून से बात कर लेता हूँ। जिस पर सज्जान खातून उससे कहती है कि ठहरो ताजिर, तुम कपड़ा बनने वाली जगह पर जाओ, मैं वही आती हूँ। नाज़रीन, इसके बाद अफरसियाब वहाँ जाता है जहाँ उसके कारवां का सामान रखा होता है और थोड़ी देर बाद वहीं सज्जान खातून भी जाती हैं, मगर सज्जान खातून को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। सज्जान खातून ताजिर अफरसियाब को आवाज देती हैं। इसी दौरान अफरसियाब पीछे से आकर सज्जान खातून के मुंह पर कपड़ा रखता है और उस कपड़े पर कोई ऐसी चीज लगी होती है जिसकी वजह से सज्जान खातून बेहोश हो जाती हैं और फिर अफरसियाब और अफरसियाब का सिपाही सज्जान खातून को एक बड़े टोकरे में डाल देते हैं और उस टोकरे को अपने सामान के साथ घोड़े पर लाद देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि सुमुर्तकिन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और हाइमा खातून उसके करीब बैठी हुई हैं। सुमुर्तकिन कहता है कि अम्मी जान, इस दिन का ख्वाब मैंने बरसों से देखा था कि मैं अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। हाइमा खातून सुमुर्तकिन से कहती है कि अभी तुम जख्मी हो, तुम आराम करो, कल हम बहुत सी बातें करेंगे। इस पर सुमुर्तकिन कहता है, अम्मी जान, कल मैं जाना चाहता हूँ। ये सुनकर हाइमा खातून बहुत दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, तुम अभी तो आए हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो और इस जख्मी हालत में कैसे जाओगे? इस पर सुमुर्तकिन कहता है, अम्मी जान, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये सुनकर हाइमा खातून कहती हैं, तुम बिल्कुल अपने भाई अर्तगल की तरह हो, जिस तरह अर्तगल हमसे बातें छुपाता है इसी तरह तुम भी बातें छुपा रहे हो। इस पर सुमुर्तकिन कहता है, अम्मी जान, राज मजीद राजू के पर्दा होते हैं। सुमुर्तकिन कहता है कि अम्मी जान, मेरे राज आपको मजीद परेशान कर देंगे, मेरे राजू को राज रहने दें।
हैं। सुमरतकिन कहता है कि अम्मी जान याद रखें, मैंने कभी अपने बाबा और अपने आबाओ अजदाद की इज्जत पर धब्बा नहीं लगने दिया। इसके बाद हाइमा खातून सुमरतकिन से कहती हैं कि थोड़ा आराम कर लो, और फिर सुमरतकिन सो जाता है। इसी दौरान वहाँ अर्तगल आता है और हाइमा खातून से कहता है अम्मी जान मुझे अपनी दुआओं के साथ रुखसत करें, मैं इंशाअल्लाह आपके लिए खुशखबरी लेकर आऊंगा। इस पर हाइमा खातून कहती हैं कि जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद अर्तगल हाइमा खातून से मिलने के बाद खेमे से निकल जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि गोंचा गुल अपने खेमे में मौजूद है और इसी दौरान वहाँ मेहरदीन और आलिया आते हैं। मेहरदीन गोंचा गुल से कहता है क्या काम हो गया? इस पर गोंचा गुल खुशी से कहती है कि जी बाबा, काम हो गया, मैंने उस मोहर को हासिल कर लिया है। और इसके बाद वो मोहर मेहरदीन को दे देती है और कहती है खाने के दौरान मैं और रोशनी अंदर खेमे में गए और मुझे ये मोहर वहाँ से मिल गई। और फिर वो उनको बताती है कि उसने ये मोहर कैसे चुराई है। इसके बाद मेहरदीन कहता है कि हमारी हुक्मरानी का वक्त आ गया है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। इस पर आलिया कहती है भाई ये मोहर किस लिए है? इस पर मेहरदीन कहता है कि ये मोहर ओगोस खान की मोहर है। ये सुनकर आलिया और गोंचा गुल हैरान हो जाते हैं। गोंचा गुल कहती है कि बाबा, इस मोहर के पीछे बहुत से सुल्तान और बहुत से खान पड़े हुए हैं और आप इसे सादुद्दीन कोपेक को दे देंगे। ये सुनकर मेहरदीन कहता है कि अब सादुद्दीन कोपेक का वक्त है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हमजा कैद खाने का ताला खोलकर वहाँ से भाग जाता है और अफरासियाब के खेमे में जाता है। अफरासियाब हमजा को देखकर कहता है कि हमजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमजा कहता है कि नोयान कभी अपने बहादुर जवानों को पीछे नहीं छोड़ता, तुम मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने का कोई हल निकालो, मैं और नोयान तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। इस पर अफरासियाब कहता है ठीक है, मैं कोई हल निकालता हूँ, यकीनन नोयान तुम्हारी वापसी से बहुत खुश होगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल बजंतीनी सरहद के लिए रवाना होने के लिए अपने खेमे से बाहर आता है और बाहर उसके सिपाही दोहान, तुर्गत और बामसी खड़े होते हैं। अर्तगल बाहर आकर अपने भाई गुंदुगदू से मिलता है और अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि तुम लोग जाओ। गुंदुगदू अर्तगल से कहता है कि अर्तगल, तुम जहाँ भी जा रहे हो अल्लाह तुम्हें खैर और आफियत से लेकर जाए। जिस पर अर्तगल कहता है भाई अपने दिल पर कोई बोझ ना रखें, इंशाअल्लाह मैं जैसे ही वापस आऊंगा आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद अर्तगल गुंदुगदू से गिले मिलता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इस किस्से के आखिर में आप देखें कि ताजिर अफरासियाब कबीले से सामान लेकर निकल रहा है और उसने सामान में सज्जार खातून को अगवा करके छुपाया हुआ है और हमजा भी उसके सामान में छुपा होता है जिसको गुंदुगदू ने खुद फरार करवाया है। नाज़रीन, जब अफरासियाब कबीले के पुल पर पहुँचता है तो उसको गुंदुगदू रोक लेता है। जब ताजिर अफरासियाब ये सूरत हाल देखता है तो वो गुंदुगदू से कहता है कि जनाब मुझे अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत करें, हम दोबारा भी मिलकर कारोबार करेंगे। इस पर गुंदुगदू कहता है कि बिल्कुल ताजिर, हम जरूर मिलकर काम करेंगे। इसके बाद गुंदुगदू कारवान वाली गाड़ी के पास जाता है तो हमजा उसको वहाँ से चादर हटाकर इशारा करता है। नाज़रीन, इसी दौरान आपको दिखाया जाएगा कि गुंदुगदू ने हमजा को क्यों भगाया और इसने हमजा के साथ मिलकर नोयान के खिलाफ क्या मंसूबा बनाया है। नाज़रीन, आप देखें कि हमजा गुंदुगदू से कहता है कि भाई मेरा खून आप पर हलाल है, लेकिन मुझे शहादत का मौका दें, मैं नोयान का सर आपके पास लेकर आऊंगा। हमजा कहता है कि भाई यहाँ एक और गद्दार भी है जिसको मैं जानता हूँ, वो नोयान के लिए काम करता है। इस पर गुंदुगदू कहता है कौन है वो? इस पर हमजा कहता है ताजिर अफरासियाब, नोयान का जासूस है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप उनको गिरफ्तार करें और उनसे उगलवाएं। इस पर गुंदुगदू अपना खंजर निकाल कर हमजा के गले पर रख लेता है और कहता है हमजा याद रखना, अगर तुमने मुझसे धोखा किया तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। और इसके बाद गुंदुगदू हमजा से कहता है मैं तुम्हें आज शाम यहाँ से भगा दूंगा, तुम सीधा ताजिर अफरासियाब के पास जाओगे और फिर तुम अब्दुर्रहमान का अधूरा काम पूरा करोगे। यह सुनकर हमजा बहुत खुश होता है और फिर गुंदुगदू कैद खेमे से निकल जाता है और अपना खंजर और कैद खाने की चाबी हमजा को दे देता है। नाज़रीन, इसके बाद इस किस्से में जो कुछ भी हुआ वो हम आपको बता चुके हैं। ये सब ख्यालात आने के बाद गुंदुगदू अफरासियाब के पास आता है और कहता है आपका सफर आसान हो और फिर अफरासियाब वहाँ से रवाना हो जाता है।